In this video, I will explain how exam questions are designed, how to read the model paper alignment table, and how understanding student learning outcomes and cognitive levels can help you prepare more effectively for your exam. First, we will understand that student learning outcomes or SLOs actually are. These outcomes describe what students are expected to learn and be able to do after studying a topic. Second, we will see how exam questions are derived from these SLOs. In modern examinations, questions are not random. They are carefully designed based on specific learning outcomes. Third, we will learn how to read the model paper alignment tables. These tables shows how each question in the exam is connected to a particularly SLOs and cognitive level. Understanding these tables helps students see how the exam paper is structured. And finally, we will discuss cognitive levels, which describes the type of thinking required to answer a question. This includes knowledge, understanding, and application. Student learning outcomes or SLOs describe what students are expected to learn after studying a particular topic. They define the knowledge and skills that students should develop during the learning process. Each topic in the syllabus is associated with specific SLOs code, which help organize and track these learning outcomes. Based on these SLOs, exam questions are designed to assess whether students have achieved the required learning objectives. How FBI SE designs exam paper. In an SLOs based examination system, every question is connected to a specific student learning outcomes, that is SLOs. This ensures that the exam paper is designed according to the official syllabus and properly assesses what students are expected to learn. While designing the exam paper, three important factors are considered. First is the content area, which refers to the topic from which the question is taken. Second is the cognitive level, which shows the type of thinking required, such as knowledge, understanding, or application. And the third one is the marks, which determine the weight or importance of the question in exam. By considering these factors, the exam paper becomes balanced, fair, and aligned with the learning outcomes. This is Federal Board SSE Examination Computer Science Model Question Paper. Alignment of question with SLOs. यहाँ पे ये सेक्शन 1 दिया गया है, तो सेक्शन 1 में देखें, यहाँ पे सेक्शन ए, जितने भी क्वेश्चन वो सेक्शन ए के हो गए, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की हम बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट है ये कंटेंट डोमेन एरिया A3 है, A3 से लिया गया। A3 क्या चीज है ये देखिए, डोमेन ए कंप्यूटर सिस्टम जो कि चैप्टर नंबर 1 है, डोमेन बी कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एल्गोरिदम जो कि डोमेन बी है, चैप्टर नंबर 2। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 प्रोग्रामिंग फंडामेंटल को डोमेन सी दिया गया है, डेटा एंड एनालिसिस को डोमेन डी दिया गया है, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस को ई दिया गया है, और इंपैक्ट्स ऑफ कंप्यूटिंग को एफ कहा गया है, और डिजिटल लिटरेसी को जी और एंटरप्रेन्योरशिप को एच कहा गया यहाँ पे। तो इसके मुताबिक इन्होंने क्या किया, इसमें स्टूडेंट लर्निंग आउटकम में क्या पूछा जाएगा, के पूछा जाएगा, जस्ट नॉलेज आपका टेस्ट किया जाएगा, ठीक है, और ये 1 मार्क्स का होगा, जो कि आपका क्वेश्चन 1 का जो पार्ट 1 होगा। स्टूडेंट विल आइडेंटिफाई एंड लर्न कॉमन सॉफ्टवेयर टूल्स सच एज ट्रांसलेटर, ये तो उसके लिहाज से एग्जांपल दी गई है जो कि मॉडल पेपर की है, लेकिन आपका जो एक्चुअल एग्जाम भी होगा वो भी आपका ए डोमेन से लिया जाएगा।
ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन 1 का 2 वो भी आपका चैप्टर नंबर 1 से लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यानी मींस क्वेश्चन 3 होगा जो कि पार्ट ए का होगा, वो भी आपका डोमेन 1 से लिया जाएगा, ए से लिया जाएगा। तो इस तरह, और ये देखिए तीनों डोमेन से लिए गए। पहले वाले में नॉलेज टेस्ट किया जाएगा आपका, सेकंड वाले में आपकी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट की जाएगी, और जो थर्ड क्वेश्चन होगा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 का, उसमें आपको एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये दो क्वेश्चन ये B1 यानी कि चैप्टर नंबर 2 से लिए जाएंगे, और इन दोनों में आपकी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट की जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये D1 से लिए जाएंगे, D1 और D2 से लिए जाएंगे। ठीक है, और इसमें आपका नॉलेज टेस्ट किया जाएगा, जस्ट नॉलेज, सिंपल क्वेश्चन होंगे जिसमें नॉलेज के रिलेटेड वो बताएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 8 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपका चैप्टर नंबर ई से लिया जाएगा। चैप्टर नंबर ई अगर आप देखते हैं तो चैप्टर नंबर ई आपके पास आएगा एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो इसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और 11, ये आपका F3 और F2 से लिया जाएगा, और इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज चेक किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 और 13, क्वेश्चन नंबर 12 जो होगा वो G1 से सिर्फ एक क्वेश्चन लिया जाएगा और उसकी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट की जाएगी, और क्वेश्चन नंबर 13 8 से लिया जाएगा, चैप्टर डोमेन 8 से, और उसमें भी आपकी अंडरस्टैंडिंग ही टेस्ट की जाएगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। तो इस तरह हम नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेक्शन बी और सी। सेक्शन बी में हम क्या करेंगे, बी में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट होगा वो आपका चैप्टर नंबर 1 से लिया जाएगा, डोमेन ए से लिया जाएगा। ठीक है, और उसमें आपकी नॉलेज टेस्ट किया जाएगा, और उसका जो ऑप्शनल क्वेश्चन होगा उसका भी नॉलेज ही टेस्ट किया जाएगा, और वो डोमेन D1 से लिया जाएगा। ठीक है, अब जो देखिए क्वेश्चन 1, इसमें दोनों की कंप्लेक्सिटी सेम ही होगी। ये नहीं होगा कि इसमें नॉलेज टेस्ट किया जाए और इसमें अंडरस्टैंडिंग पूछी जाए, नहीं। अगर जो अल्टरनेट क्वेश्चन होगा उसमें क्या होगा, यू हैव टू गिव द आंसर इन फॉर्म ऑफ अ नॉलेज और इन फॉर्म ऑफ अ अंडरस्टैंड। जो भी कंप्लेक्सिटी होगी क्वेश्चन की, वो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको या तो नॉलेज के बारे में बात करनी होगी या फिर अंडरस्टैंडिंग वहां पे आपको प्रोवाइड करना होगी। पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो यहां पे भी देखें क्या लिया गया, यहां पे एप्लीकेशन है और इधर भी एप्लीकेशन है। जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 2 आएगा वो भी इसी एप्लीकेशन से ही रिलेटेड होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका होगा, क्वेश्चन नंबर बी, सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 3, उसमें डोमेन D3 टेस्ट की जाएगी, और वो दोनों के दोनों एप्लीकेशन रिलेटेड होंगे। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आपका अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड होगा, और ये क्वेश्चन लिया जाएगा C1 से। C1 मीन दैट इज चैप्टर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा, क्वेश्चन नंबर 5 में आपका नॉलेज टेस्ट किया जाएगा, और ये भी चैप्टर नंबर 1 से लिया जाएगा। सेक्शन बी का जो 6 क्वेश्चन नंबर होगा, ये D1 डोमेन से लिया जाएगा, और इन दोनों में इसमें भी अंडरस्टैंडिंग चेक की जाएगी, इसमें भी अंडरस्टैंडिंग चेक की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 का जो 7th क्वेश्चन होगा वो B1 चैप्टर डोमेन से लिया जाएगा, और इसमें भी नॉलेज टेस्ट होगा और इसमें भी नॉलेज टेस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो कि क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 दोनों में अंडरस्टैंडिंग चेक की जाएगी, इसमें भी अंडरस्टैंडिंग चेक की जाएगी, इसमें भी अंडरस्टैंडिंग चेक की जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक सब में अंडरस्टैंडिंग चेक की जाएगी, 8 से लेके 11 तक, 8 9 10। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका नॉलेज टेस्ट किया जा रहा है, और वो डोमेन किससे होगा, ये ए से होगा, नॉलेज टेस्ट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 14 15, 13 और 14 में आपका अंडरस्टैंडिंग चेक की जाएगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक की जाएगी, और B1 डोमेन से होगा, और यहां से वो E1 से डोमेन से होगा, और C1 डोमेन से होगा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें आपकी एप्लीकेशन के बारे में पूछा जाएगा,
एप्लीकेशन के बारे में वो टेस्ट किया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 होगा। के से नॉलेज होता है, यू से अंडरस्टैंडिंग होती है और ए से एप्लीकेशन होता है। और इसमें देखिए जो क्वेश्चन नंबर 12 है, ये यहां पे सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है। पहले क्वेश्चन में जो आपका सी सेक्शन होगा उसमें आपका नॉलेज टेस्ट किया जाएगा, जो कि ए डोमेन से बिलोंग करता होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में आपकी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट की जाएगी। ठीक है, 4 और 5 में अंडरस्टैंडिंग की जाएगी, जो कि इन डोमेन से B1 से, F2 से, E1 से और C1 से बिलोंग करते होंगे। और लास्ट क्वेश्चन जो कि D2 से होगा, और इसमें आपकी एप्लीकेशन के बारे में टेस्ट किया जाएगा इस क्वेश्चन में या और अल्टरनेटिव क्वेश्चन में। Now here you can see that model paper versus actual exam paper. Key idea is that the real exam follow the same learning outcome structure, but the question may change. आपका जो एक्चुअल एग्जाम होगा उसमें वो कहता है कि आपका SLO का स्ट्रक्चर तो सेम होगा, लेकिन उसके क्वेश्चंस में भी चेंज, और डेफिनेटली दैट विल बी चेंज। सेम इसमें क्या होगा, SLOs सेम होंगे, इसमें कोग्निटिव लेवल्स भी सेम होंगे, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन, मार्क्स एंड सेक्शन भी सेम होंगे। मे चेंज, बट व्हाट कैन बी चेंज, क्वेश्चन वर्डिंग आपकी चेंज हो सकती है और डेफिनेटली चेंज होगी, एग्जाम्पल्स चेंज होगी, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की ऑप्शंस चेंज होगी। नेक्स्ट, और क्वेश्चन में आपने क्या करना है, सेक्शन बी एंड सी कंटेन्स और क्वेश्चंस। आपको पता है कि सेक्शन बी और सी में आपके अल्टरनेटिव क्वेश्चंस हैं, देन व्हाट यू शुड डू देयर, स्टूडेंट्स आंसर वन क्वेश्चन फ्रॉम टू चॉइसेस। आपको दो चॉइसेस की दी जाएगी सेक्शन बी और सी में, और दोनों में से आपने एक चॉइस को करना है, एक को सिलेक्ट करना है। हाँ, आपने गलती से एक ही क्वेश्चन पेपर, एक ही क्वेश्चन के दोनों पार्ट को सिलेक्ट नहीं करना, क्योंकि आप कभी भी एग्जामिनर को धोखा नहीं दे सकते। ठीक है, प्लीज ट्राई टू डू वन। इफ यू विल डू इन दिस वे, देन यू आर वेस्टिंग योर टाइम। Next, both options usually have same marks, similar difficulty and similar cognitive levels. जो alternate options होती है उसमें सिमिलर टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी के क्वेश्चंस होते हैं। अगर एक में अंडरस्टैंडिंग पूछी गई है तो दूसरी में भी डेफिनेटली अंडरस्टैंडिंग ही होगी, और जैसा कि मैंने आपको मॉडल पेपर में दिखाया हुआ है। कोग्निटिव लेवल्स में क्या होता है, नॉलेज, जिसमें नॉलेज लिखा होगा उसमें किस तरह के क्वेश्चन होते हैं एक्चुअली पूछी जाती है। रिकॉल फैक्ट्स, टर्म्स और डेफिनेशंस, कॉमन क्वेश्चन वर्ड्स, इसमें किस तरह के वर्ड्स ज्यादातर पूछी जाती है, जिसमें आपको नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाएंगे। उसमें डिफाइन से रिलेटेड पूछा जाएगा, डिफाइन कुछ किसी की चीज को भी वो क्या है, डिफाइन लिस्ट के बारे में बात कर देगा, वो डिफाइन सीपीयू के बारे में, डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करेगा, लिस्ट ऑफ दीज आपसे लिस्ट पूछ लेगा कि इसमें से लिस्ट प्रोवाइड करे, नेम पूछ लेगा किसी चीज के नाम, आइडेंटिफाई पूछ लेगा, स्टेट पूछ लेगा, रिकॉग्नाइज एंड लेबल लेबल आपसे करवा लेगा। तो ये नॉलेज में ये चीजें टेस्ट की जाती है, इस तरह की वर्डिंग वो यूज करता है। जबकि अंडरस्टैंडिंग में कौन कौन सी वर्डिंग यूज करता है और कैसे होता है, एक्सप्लेन आइडियाज और डिस्क्राइब कॉन्सेप्ट इन योर ओन वर्ड्स। आपने क्या करना होता है, आपने अपने अल्फाज में इसके कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना होता है, और जो कॉमन वर्डिंग इसके लिए यूज की जाती है इसमें एक्सप्लेन से रिलेटेड हो जाता है, डिस्क्राइब से रिलेटेड हो जाता है, डिस्कस से रिलेटेड होता है, डिफ्रेंशिएट होता है, कंपेयर करना आता है, समराइज करना आ जाता है, इंटरप्रेट के लिहाज से ये बातें की जाती है। ये अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड के क्वेश्चंस हैं। और जो कि एप्लीकेशन से रिलेटेड के क्वेश्चंस में अप्लाई नॉलेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और परफॉर्म अ टास्क, उसमें आपने नॉलेज को अप्लाई करना होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और इसमें कॉमन वर्ड्स कौन कौन से यूज किए जाते हैं, जैसे सॉल्व, अप्लाई, calculate, design, evaluate, suggest, construct, implement, like these words. How students should prepare. Study
टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू दियर SLOs, आपको SLOs के मुताबिक स्टडी करनी चाहिए। अंडरस्टैंड रिक्वायर्ड कोग्निटिव लेवल्स, आपको लेवल्स के जो इसके हैं उसके कॉन्सेप्ट होने चाहिए। प्रैक्टिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। And key message, last I want to give a key message. Students should not memorize questions. They should understand the SLOs and cognitive level. And hope for the best in exam, inshallah.